हे एवरीवन, दिस इज एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हुए थे और आज हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे। मतलब हमने मॉर्फो एक्सटर्नल फीचर पढ़े, अब हम इंटरनल फीचर आगे की चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी लोगों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो हम है ना क्या बोलते हैं कि हमने जो पहले टॉपिक्स किए हुए थे उसकी आप लोग सभी लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और आप चीज़ों को लिंक कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो आज हम एंड्रोसियम से कंटिन्यू करेंगे। तो एंड्रोसियम से देखते हैं कि कहाँ तक आज हम कर पाएंगे। वैसे तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि इसको पूरा कंप्लीट फिनिश करें। ओके, सो हमने एस्टिवेशन हमने कवर किया हुआ था, जो कि हमने एस्टिवेशन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन लिखे थे, वेलवेट, ट्विस्टेड और ये इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट वैक्सिलरी, ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन लिखे हुए थे। इसके बाद आज हम एंड्रोसियम से कवर करेंगे। तो देखते हैं कि एंड्रोसियम आगे क्या उसमें वो है। ठीक है, यस, लेट्स वी कंटिन्यू विद मी। Endocyum is the composed of stamens. Each stamen, which represent the male reproductive organ, consists of a stalk or a filament, and each anther is usually bilobed, and each lobe has two chamber. The pollen grain are produced in pollen sac. A sterile stamen is called staminoid. Stamens or flower may be united with other members such as petals or among themselves. When stamens are attached to the petals, they are epipetalous as in brinjal, or epiphyllous when attached to the perianth as in flower of lily. The stamen in a flower may either remain free, polyandrous, or may be united in varying degree. The stamen may be united into one bunch, one bundle, edilophos as in China rose, or two bundles, didelphus as in pea, or into more than two lobes, polydelphus as in citrus. There may be variation in the length of filament within a flower as in saliva and mustard. Gynosium is the female reproductive part of the flower and is made up of one or more carpel. A carpel consists of three parts, namely stigma, style, and ovary. Ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube. The style connect the ovary to the stigma. The stigma is usually at the tip of the style and is reproductive surface for pollen grains. Each ovary bear one or more ovules attached to the filament, cushion-like placenta. When more than one carpel is present, they may be free as in lotus and rose, and are called apocarpus. They are termed syncarpus when carpel are fused as in mustard and tomato. After fertilization, the ovule develop into seed and into the ovary, and the ovary mature into a fruit. Placentation, the arrangement of ovule within the ovary, is known as placentation. The placentation are of different types of namely marginal, axial, parietal, basal, central, and precentral. In marginal placentation, the placenta form a ridge along the ventral surface, ventral structure of the ovary, and the ovules are borne on the ridge, forming two rows as in P. When the placenta is axial and ovules are attached to it in an multilocular ovary, the placentation is said to be axial as in China rose, tomato, lemino. In
In perilateral placentation, the ovule develop on the inner wall of the ovary or peripheral part. Ovary is in one chambered, but it becomes two chambered due to the formation of false septum. Example: mustard and ergemone. When the ovule are born on central axis and septa are absent as dianthus and primose, the placentation is called free central. In basal placentation, the placenta develops at the base of ovary and single ovule is attached to it as in sunflower marigold. The fruit is characteristic feature of the flower plant. It is a mixture of ripened ovary developed after fertilization. If a fruit is formed without fertilization of ovary is called parthenocarpic fruit. Generally, the fruit consists of a wall or pericarp and seed. Seed and seed. The pericarp may be dry or fleshy. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into the outer epicarp, the middle mesocarp and the inner endocarp. ठीक है, अब इसमें जो उसको जो है ना पूरा पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स को है ना पूरा डिवाइड बताया गया है, एपिकार्प, मेसोकार्प, सीड, एंडोकार्प, ये सब है ना. एक सेकंड. Yes. In mango and coconut, the fruit is known as a drupe. In mango, they develop from monocarpellary superior ovary and are one-seeded. In mango, the pericarp is well differentiated into an outer thin pericarp, middle fleshy, edible mesocarp. जो middle वाला fleshy part होता है ना वो edible होता है, ठीक है. edible मतलब खाने के उसमें वो आता है, ठीक है. And inner stony and hard endocarp in coconut, which is also a drupe. The mesocarp is fibrous, ठीक है. The seed. अब देखो हम seed कंटिन्यू कर रहे हैं. तो ovule after fertilization develop into seed. A seed is made up of seed coat and an embryo. The embryo is made up of a radicle, an embryonal axis, and one as in wheat, maize, or two cotyledon as in gram and pea. The structure of dicotyledonous seed. The outermost covering of a seed is the seed coat. The seed coat has two layers, the outer testa and the inner tegmen. The hilum is scarce on the seed coat through which the developing seed were attached to the fruit. Above the hilum is a small pore called micropyle. Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledons. The cotyledons are often fleshy and full of reserve food material. At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. In some seeds, such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue. In plants such as bean, gram, and pea, the endosperm is not present in mature seed, and such seed are called non-endospermous. Structure of monocotyledonous seeds. अब हम monocotyledonous seed के structure कंटिन्यू करें, ठीक है. Generally, monocotyledonous seed are endospermic, but some as in orchids are non-endospermic. In the seed cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally seed fused with the fruit wall. The endosperm is bulky and store food. The outer covering of endosperm separates the embryo by proteinous layer called eleuron layer. The embryo is small, situated in a groove at one end of the endosperm. It is consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with plumule and radicle. The plumule and radicle are enclosed in sheath which are called collupetal and coleorhiza.
रिस्पेक्टफुली, ठीक है। इसमें सीड का स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड बताया हुआ, ये देखिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें ना और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं बताया, पर जो एनसीईआरटी में जो पार्ट्स बताए हुए हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमी टेक्निकल descriptions of a typical flowering plant. Various morphological features are used to describe a flowering plant. The description has to a brief in a simple and scientific language and presented in a proper sequence. The plant is described being with its habit, vegetative character, root, stem, and leaves, and then floral character, inflorescence, and flower part. After describing various parts of plant, a floral diagram and floral formula are presented. The floral formula is represented by some symbol. In floral formula, DR stand for brackets, K stand for calyx, C for corolla, P for perianth, A for endoecium, G for gynoecium and G for superior ovary. G और उसके नीचे जो डैश, इसे G बना के और उसमें नीचे डैश, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। फॉर इंफीरियर ओवरी मेल, उसका फॉर इंफीरियर ओवरी एंड सुपीरियर ओवरी, ठीक है। जो सुपीरियर ओवरी रहेगी उसमें है ना नीचे डैश रहेगा जी में, और जो इंफीरियर ओवरी रहेगी उसमें ऊपर डैश रहेगा, ठीक है। मेल के लिए उसमें मेल का सिंबल रहेगा, फीमेल के लिए फीमेल का सिंबल रहेगा, ठीक है। एंड बाइसेक्सुअल प्लांट्स, बाइसेक्सुअल प्लांट में एक राउंड ऐसा छोटा सर्कल बना के उसमें बीच में प्लस का साइन। फॉर एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाई enclosing the figure within bracket and addition by a line drawn above the symbol of the floral parts of the floral diagram provide information about the number of parts of a flower, their management, and relation they have with one another. The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. Calyx, corolla, endoecium, and gynoecium are drawn in successive order. Calyx being the outermost and gynoecium being the center. Floral formula also shown cohesion and adhesion within the part of hold and between holes. The floral diagram and floral formula in figure represented the mustard plant family Brassicaceae, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिली, देखो फेबेसियाई ब्रासिकेसी फैमिली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका हर एक जो उसमें वो बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे ज्यादा फैमिली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो उसमें डिफरेंट जो उसकी फैमिली है ना वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। द फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पेपिलोनोडेसियाई, a subfamily of family Leguminosae. It is distributed all over the world. Vegetative character: trees, shrubs, herbs, root with root nodules, stem erect or climber, leaves alternate pinnately, compound of simple leaf, base, pulvinate, stipuate, venation, reticulate, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर को क्या बताया है? इनफ्लोरोसेंस, रेजिमोस, फ्लावर बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, कैलिक्स, सेपल, 5 गैमोसेपल्स, इम्ब्रिकेट, एस्टिवेशन, ठीक है। इसमें देखो सब कुछ, इसमें कौन सा एस्टिवेशन होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, किसकी बात हो रही है? वेजिटेटिव कैरेक्टर किसकी बात हो रही है? ये है ना, वेजिटेटिव कैरेक्टर से बात हो रही है। स्टेम्स ऑफ लीफ और फ्लोरल कैरेक्टर, ये सब, इन सब की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे इसी में फेबेसिए फैमिली के बारे में सारा कुछ ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमने फैमिली स्टार्ट की ना उसमें हम फेबेसिए फैमिली के बारे में सारा कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके हम फ्लोरल कैरेक्टर और सारी चीजें पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोरेला, पेटल्स 5 पॉलीपेटलस, पेपिलिनेसिए, कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 lateral wings, 2 anterior, 1 forming a keel enclosing stamen and pistil, maxillary estivation, endoecium 10 didelphous,
and the Dithecus gynoecium, ovary superior, monocarpellary, unilocular locular with many ovule, style single, fruit legume seed, वन टू मैन नॉन एंडोस्पर्मिक. फ्लोरल फॉर्मूला देखो उसका क्या होता है, परसेंटेज. अब यहाँ पे बोर्ड होता है तो मैं आपको बता दी, और कोई नहीं, आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा. ठीक है, परसेंट और मेल और फीमेल, मतलब बाइसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल दोनों का उसमें साइन लगा हुआ है. ये देखिए, ये ठीक है, K C1+2 प्लस इन ब्रैकेट 2 A9 इन ब्रैकेट +1 और G नीचे डैश. ठीक है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की क्या है, मैनी प्लांट बिलोंग टू द फैमिली आर सोर्स ऑफ पल्सेस, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, सोयाबीन ग्राउंडनट, डाई, इंडिगोफेरा, फाइब्रस, सन हेम्प, फूडर, सिस्बिना, ट्राइफोलियम, और ऑर्नामेंटल्स, ल्यूपिन, सूट, पी, मेडिसिन, मुलेठी. ठीक है. अब सॉलिनेसी की बात करते हैं हम. ये सारे इसके एग्जाम्पल थे. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसमें बताया हो. ठीक है. और फैबेसी के बारे में हमने पढ़ा है. अब हम सॉलिनेसी के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली. सबसे बड़ी फैमिली होती है, उसको पोटैटो फैमिली भी कहते हैं. इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स. ठीक है. वेजिटेटिव कैरेक्टर, प्लांट मोस्टली हर्ब्स, सर्व्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज. स्टेम हेविसियस, रेयरली वुड, अर्ली एरियल, इरेक्ट, सिलेंडर, ब्रांच्ड, सॉलिड. ठीक है. in howl hairy or glabrous underground stem in potato solanum. Tubersome leaves alternate, simple, rarely pinnately compound, extricate venation, reticulate. फ्लोरल कैरेक्टर क्या है, इनफ्लोरोसेंस, उसमें क्या बोलते हैं देखो, सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस एज सोलेनम. फ्लावर कैसा होता है उसका, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक. कैलिक्स कैसा है, सेपल 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं और परसिस्टेंस होते हैं. वेलवेट एस्टिवेशन होता है. कैलिक्स की बात करते हैं हम, कैलिक्स की बात करने के लिए अब हम कोरेला की बात करते हैं. पेटल 5 यूनाइटेड, वेलवेट एस्टिवेशन, एंडोसियम, स्टेमन 5, एपीपेटलस, गाइनोसियम, बाइकार्पुलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, बाइलोक्यूलर प्रेजेंटेशन, सोवलेन विथ मेनी ओव्यूल्स. फूड कैसा होता है उसका, बेरी और कैप्सूल, सीड, मैनी एंडोस्पर्मस. फ्लोरल फार्मूला उसका क्या होता है देखो, उसमें नीचे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है. मैं है ना ये फ्लोरल फार्मूला कुछ है ना इसका एक शीट बना के एक आध दिन में आपको उसमें कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी. ठीक है. तो आप देख लीजिएगा. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पेस, चिली एंड मेडिसिन, बेलीडोना, अश्वगंधा, फ्यूमोगेट्री, टोबैको, ऑर्नामेंटल, प्यूटिनिया. ठीक है. अब लिली की बात करते हैं. कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली इज द कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलिडनस प्लांट. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड. वेजिटेटिव कैरेक्टर, perennial herbs and underground bulb corms, rhizome, leaves mostly basal, alternate, linear, exist, pullate with parallel venation. Floral character क्या होते हैं, inflorescence, solitary, cymos, often umbelates, cluster. फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, एक्टोनोमॉर्फिक और पेरियंथ. टेपल्स 6 3+3, often united into tube, velvet estivation, एंडोसियम, स्टेमन 6 3+3 in bracket. गाइनोसियम, ट्राइकार्पुलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, ट्राइलोक्यूलर विथ मैनी ओव्यूल, एक्सिल प्रेजेंटेशन. और फ्रूट कैसा होता है इसका, कैप्सूल और रियरली बेरी, सीड, एंडोस्पर्मस. और उसका फ्लोरल फार्मूला लिखा हुआ है. ठीक है. बी प्लस बाइसेक्सुअल, पी प्लस 3+3 और ए 3+3, नीचे जी और नीचे डैश 3. ठीक है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मैनी प्लांट बिलोंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल, ट्यूलिप, ग्लोरिसा, सोर्स ऑफ मेडिसिन,
एलियो, वेजिटेबल, एस्पार्गस एंड क्लोरिसिन और कोलोचियम ऑटोमेल। ठीक है, इसका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, उसकी समरी बचती है। समरी हम है ना जो हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर करेंगे उसमें हम समरी कवर करेंगे। समरी आज हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट लेक्चर इसलिए दे रही हूँ ताकि आप उनको क्विक और 2-3 बार रिवाइज कर सकें, और फास्ट इसलिए मैं रीडिंग करती हूँ ताकि आप है ना, देखो अगर मैं आराम से रीडिंग करूँगी ड्यूरेशन ज़्यादा जाएगा और टाइम आपका जाएगा, आप 2x में लिखोगे और आपको चीज़ों को समझ में आएंगे, कुछ नहीं समझ में आएंगे, इसलिए मैं फास्ट रीड करके फास्ट वो करती हूँ। ठीक है, जितने भी फैमिलीज हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और उसमें फैमिली के जो फॉर्मूलेज आते हैं सारे ना, सोलिनेसियाई, फैबेसियाई और लिलियाceae, इन सब फैमिली के जो फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, 4 फैमिली होती हैं, सोलिनेसियाई, फैबेसियाई, नंबर 1 सोलिनेसियाई, फैबेसियाई और लिलियाceae और ब्रासिकेसियाई, 4 फैमिली, चारों फैमिली के जो फॉर्मूले होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फैमिली का जो डिस्क्रिप्शन है, वेजिटेटिव और इनका इनफ्लोरेसेंस सारा कुछ है ना, ये सबको काफ़ी मतलब इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं नीट के एग्जाम में भी और बाकी एग्जाम में भी। तो मैं आपको फ्लोरल फार्मूला इनके बेसिकली फ्लोरल फार्मूला है, बाकी सब आप देखेंगे है ना, वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में लिख के डाल दूंगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, और आपको जो भी कुछ डाउट्स हैं, प्रॉब्लम है, वो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपके डाउट्स है ना कमेंट सेक्शन में देखूंगी और क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको बताऊंगी। ठीक है, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, तो आप ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, इसकी समरी पढ़ेंगे। समरी में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी, मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ रही हूँ, आप पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की आप थोड़ी सी कुछ टॉपिक्स की रीडिंग करेंगे है ना, मतलब 1-2 टॉपिक रीड करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे इसे ही, उसका टिश्यू और द टाइप्स ऑफ टिश्यू, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस, मोनोकोटिलिडनस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद आप ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, और आपको जो भी डाउट्स और प्रॉब्लम आ रहे हैं वो आप मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।